सो HMB हमने आज करना है। गायनी के हम काफी टॉपिक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम विल डू ऑब्स्टेट्रिक्स। लेकिन चलो खैर, किसी ने अगर वॉलंटियर करना है तो आप बता दो। HMB इज अ टॉपिक जो कि वन ऑफ द टिपिकल टॉपिक्स है, जो कि आने का बहुत ज्यादा चांस है। जैसे कहते हैं ना कि अनीमिया आएगा, फाइब्रॉइड आएगा, और ऑब्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जरूर आएगा। इस तरह से HMB इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि सारी जिंदगी हम ऐसे पेशेंट्स को डील करेंगे। और एग्जाम में वो चीज तो जाहिर है कहीं ना किसी तरीके से जरूर उस पर पूछा जाता है। पूरा स्टेशन ही होता है जो कि हर वक्त हमने जिससे हमारा इनकाउंटर होना है। ठीक है। सो जी, किसी ने अगर वॉलंटियर करना है तो बताओ, क्योंकि HMB की हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। आपको हिस्ट्री की बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्विकली अगर किसी ने करना है तो बड़ी अच्छी बात है, ताकि हम जल्दी से बात आगे शुरू करें। वॉलंटियर करोगे तो आगे कोई प्रैक्टिस होगी ना आप लोगों की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम। जी जी सलाम जी। मैडम मैं कर लूं? कर लो इरम। जी मैडम। जी इरम, चलो गुड। इरम, कोई सिनेरियो है या हम स्टार्ट करें? मैं बताऊं? मैडम आप बता दें। All right. So patient is 47 years of age. She is para 3 with all normal deliveries, and she presents to you with heavy menstrual bleeding for last 6 months. And also she has developed shortness of breath with palpitations. And on ultrasound, there is normal endometrial thickness and no mass in the uterus. मैडम ये रोल प्लेयर है या स्ट्रक्चर डिस्कशन? स्ट्रक्चर डिस्कशन है। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल I will confirm the given information to me, and I will take detailed history, examination, investigation, and according to that I will manage my patient. First of all, in history, as my patient is 47 years old, para 3, and presented to us with heavy menstrual bleeding for 6 months and shortness of breath palpitation. I would like to know the pattern of heavy menstrual bleeding, previous menstrual cycle, how was the previous menstrual cycle, and any history of previous intermenstrual postcoital bleeding, and previous menstrual days. And now for 6 months, pattern of change from the previous cycle. Patient bleeds for how many days and uses how many pads, associated with clots or not, and associated with pain or not, and last menstrual period, and any history of intermenstrual bleeding, postcoital bleeding, any complaint of loss of appetite, weight loss, and heat and cold intolerance, long-standing cough with the night sweats or fever, complaint of any pain abdomen, feeling of mass abdomen, and any abnormal vaginal discharge, and yellow discoloration of eyes, and any change in urinary or bowel habits, and any history of contraceptive use, and any history of drug intake, and as my patient is 47 years old, any treatment taken up till now, and any history of endometrial sampling done or not, and madam, any family history of malignancy, like CA, breast, ovarian, endometrial, cervical CA, and any previous history of surgery in my patient, any history of diabetes, hypertension,
ischemic heart disease, and as she presented with SOB complaint, she has a complaint of SOB, and any history of madam, blood transfusion or IV iron given to by patient or not, and severity of SOB, whether on normal household work or with exertion, and any history of ischemic heart disease or any respiratory diseases like asthma or any tuberculosis, and Good, you're doing good. आगे जी. on madam on and then I would inquire about any feeling of something coming out of vagina, having much bleeding, and I would discuss with my patient about whether she wants medical or surgical treatment. Then I will examine my patient. A general physical examination. I will check her madam vitals, BP pulse, respiratory temperature, and signs of anemia, and jaundice, thyroid, and respiratory, cardiovascular examination, and on periabdominal examination, any feeling of mass abdomen, any tenderness, and any visceromegaly. And on local examination, I would say the vulva, vagina, and on perspeculum examination, look of cervix, any bleeding, discharge, on bimanual or any mass coming out of cervix, and on bimanual examination, I would see size of uterus, mobility, and position, and any tenderness or any fullness in adnexa, and any signs of edema, and madam, then I would proceed to investigation. On एक मिनट, सॉरी, यहाँ तक का फीडबैक बहुत अच्छी आपकी हिस्ट्री. हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाज गुड, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन वाज वेरी स्लो. आप यू हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगर आप इसी को प्रेजेंट फ्लुएंटली कर लो, यानी कि सोचो ना, यही बातें आप रुक रुक के ना करो, तो इट इज सच अ गुड एंड कंप्लीट हिस्ट्री. मतलब अगर आप, मुझे ना गौर से सुनना पड़ा था, क्योंकि आप बीच में बहुत अटक रहे थे. आप वो जैसे हम बात करते हैं ना कि ये नहीं बीच में, ठीक है, आपने बीच में लंबे लंबे सांस नहीं लेने, आपने बीच में अटकना नहीं है, बिकॉज इट वॉज रियली गुड. मतलब आप पता नहीं, बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं थे. आई डोंट नो व्हाई यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. आपके पॉइंट्स अच्छे थे, आपने हिस्ट्री में जो जो होना चाहिए था, यू कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मतलब इसमें वो नहीं था कि इसमें कुछ चीजें और ऐड हो. योर सीक्वेंस वाज राइट, द वे यू स्टार्टेड, एवरीथिंग वाज राइट. लेकिन आपका जो है ना स्टाइल ठीक नहीं है, क्योंकि आप बहुत रुक रुक के बोल रहे हो. इसका मतलब ये है कि आपको चीजें पता है, आपने तैयारी उस तरीके से की हुई है कि आपने लिखे हुए हैं पॉइंट्स एक जगह पे कि HMB है तो मैंने ये चीजें कवर करनी है, बट यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट. इसको अपने फिंगर टिप्स पे ले आओ, इसी हिस्ट्री को अपने फिंगर टिप्स पे ले आओ, काफी है, ठीक है. और एंड ऑल्सो यू वर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम. अगर 10 मिनट्स का स्टेशन है, 6-7 मिनट तो आपके निकल गए हुए हिस्ट्री एग्जामिनेशन पे सिर्फ. तो अब आगे एग्जामिनर बात क्या करे. यू वर रिपीटिंग थिंग्स, यू वर वेरी स्लो ऑल्सो. तो आप इस तरीके से आप अगर करोगे तो फिर देखो टाइम, और बात आपने इतनी अच्छी कर दी, लेकिन इससे आगे अगर बात ही ना हो, मैनेज ही ना हो, या इन्वेस्टिगेशन ही पूरी ना हो सके, तो फिर यू कैन नॉट पास इट. बेशक आपने हिस्ट्री अच्छी ली है, लेकिन आपको टाइम भी साथ साथ देखना है. तो इसी हिस्ट्री को आप एक तो बोलने की प्रैक्टिस बहुत करोगे, लेकिन आप इसको फिंगर टिप्स पे जब याद होगा तो रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है. और सेकेंडली कि अगर आपको कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं भी याद आ रहा ना हिस्ट्री में, फॉरगेट अबाउट इट, गो अहेड. उसको याद करने के लिए आप अपने उसको लेके ना बैठ जाओ कि आगे चलो ही ना. तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिस और करो, और अभी टाइम काफी है, और स्पेशली अगर ये वाला होमवर्क हुआ हुआ है कि क्या बोलना है, तो सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है. अनदर थिंग इसके बिकॉज सोचना ज्यादा पड़ा था,
इसलिए आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर रहे थे जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होती एग्जाम में, जैसे कि आपने फैमिली हिस्ट्री सारों की पूछी, जिसमें आपने हिस्ट्री ऑफ ओवरी और एंडोमेट्रियम, ब्रेस्ट पूछा, तो वो आई थिंक फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्विक्स इज नॉट एक्चुअली रिलेटेड, तो खाम खा के सीएस नहीं बोलने। फैमिली हिस्ट्री में ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर कर रही होती हैं। देन yes, you elaborated a bit about the shortness of breath, but that was a very very important symptom, वो स्पेशली अगर सिनेरियो में दिया है या स्पेशली क्लिनिक पे ओपीडी में आके पेशेंट ये मेंशन कर रहा है तो कोई वजह है, उसको बहुत ज्यादा वैल्युएट करो, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ब्लीडिंग से रिलेटेड, ये भी हो सकता है कि उसको हार्ट का अलग से कोई मसला भी चल रहा। सो वो चीज रूल आउट करनी है। उसके अलावा ये कि व्हेन यू वर एग्जामिनिंग द पेशेंट, योर एग्जामिनेशन, अगर देखो टाइम कम है, आपने एक्स्ट्रा बातें अगर एग्जामिनेशन में नहीं करनी तो डोंट से, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो तो पूरी करें ना, इंस्टेड ऑफ जॉन्डर्स, एम्फसाइजिंग ऑन जॉन्डर्स और अदर थिंग्स लाइक दैट। अगर आप साइंस ऑफ एनीमिया की जगह एनीमिया के साइंस बोलो तो वो बहुत अच्छा है, पैलर बोलो, कोइलोनिकिया बोलो, वो बेहतर था। फिर बिकॉज पेशेंट हैड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इन पर्टिकुलर पैल्पिटेशंस का जिक्र स्पेशली हुआ है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में, तो उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पूरा बोलना इंपॉर्टेंट था। देन यस, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन टाइम की कमी की वजह से, बट यू कवर्ड इट वेरी नाइसली। आपने पेल्विक एग्जामिनेशन भी ठीक ही कवर कर लिया, बट कुछ चीजें अगर मिस करोगे स्पेशली गिवन सिनेरियो में, क्योंकि बेशक सिनेरियो 4 लाइनों का है, आपको लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, बट उसकी जो जो 4 लाइनों में हर बात है, आपका वो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशन में उस चीज की बहुत, आपकी इन्वेस्टिगेशन में उस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, तो उसको उसी तरह से आप लेकर चलोगे। सो यस, बाकी द रेस्ट ऑफ इट वाज फाइन। थोड़ा सा क्विकली मैं आपको हिस्ट्री के एक पैटर्न सा बता देती हूँ फॉर एचएमबी। इरम डिड इट वेरी वेल, बस अपनी स्पीड तेज करना। जिस तरह से इरम ने स्टार्ट किया, यस बायोडेटा उसी तरह, थोड़ा सा क्विकली यू शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड योरसेल्फ टू द पेशेंट, फिर बायोडेटा, एंड देन एचएमबी के अंदर यू स्टार्ट विद द प्रीवियस मेंस्ट्रुअल के अब नॉर्मल साइकिल से पहले उसका साइकिल कैसा था। पेशेंट इज 47, एक प्री मीनोपॉजल उसकी एज है, इट्स मेंस्ट्रुएटिंग एज, सो यस यू विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल, पहले क्या था, पर डिटेल्स ऑफ दैट प्रीवियस साइकिल, कितने डेज की होती थी, कितने पैड चेंज करती थी, कोई डिस्मेनोरिया, डिस्पैरोरिया, इंटरमेंस्ट्रुअल पोस्टकोइटल ब्लीडिंग थी या नहीं थी। और उसके बाद आप उसके अब प्रेजेंट साइकिल में, कि अब फॉर द लास्ट, मैंने आपको शायद कब से बताया, 6 मंथ से, सो फॉर द लास्ट 6 मंथ्स अब उसको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, डेज बढ़ गए या उसके ब्लीडिंग, एंड नाउ इफ शी थिंक्स दैट शी इज ब्लीडिंग मोर, तो फिर हाउ मेनी पैड्स, विच टाइप ऑफ पैड, होममेड पैड्स है या किस मटेरियल के पैड्स हैं शी इज यूजिंग, हाउ मेनी पैड्स शी इज चेंजिंग पर डे, एंड ऑल्सो अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो व्हाट्स द साइज ऑफ द क्लॉट, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में, क्योंकि कई दफा ये भी एग्जाम में ऐसा सिनेरियो भी आ जाता है कि पेशेंट एम्फसाइज कर रही होती है नॉन स्टॉप कि उसको एचएमबी है, बट जब आप इंक्वायर करते हो हिस्ट्री से, यू रियली गेट टू नो कि एचएमबी है ही नहीं एक्चुअली, या फिर वो कहती रहती है मुझे एचएमबी है, इवन वो ये भी कहती है कि मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, इतने पैड में होती है, बट हर हीमोग्लोबिन इज ऑल द टाइम्स नॉर्मल इवन विदाउट टेकिंग एनी आयरन, ओरल आयरन। सो यू नीड रियली नीड टू नो कि ये एचएमबी वाकई पैथोलॉजिकल एचएमबी है भी कि नहीं, ठीक है। सो ये आपने जिसमें उस चीज में आपने हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यस उसी तरह सारे सिम्टम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, फिर उसके बाद जैसे हमने सारा पाम कॉइन को डीडी की तौर पे या कॉज ऑफ एचएमबी को रूल आउट किया, जिसमें से मेडिकल डिसऑर्डर्स को भी रूल आउट किया, इफ शी इज टेकिंग एनी ड्रग्स और नॉट, एग्जैक्टली उसी तरह सारा हम कर लेंगे। एंड देन यस, अब तक की उसने कोई ट्रीटमेंट ली है या नहीं ली। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशंस का जिक्र है, उसके पीछे काफी ज्यादा, थोड़ा सा जितना इरम ने जिक्र किया वो ठीक था, वो मतलब उतना बुरा नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर और भी इलेबोरेट करना है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि हम उसको डिटेल में कर सकते हैं, जैसे कि यू नो वी नीड टू डिफरेंशिएट इट एग्जैक्टली, इज इट बिकॉज ऑफ एनीमिया और इज इट बिकॉज ऑफ द कार्डियक डिजीज। कार्डियक डिजीज वाला जो है वो पैल्पिटेशंस के साथ उसको ऑर्थोपनिया, पीएनडी की भी, और स्वेटिंग, कोल्ड स्वेट्स, चेस्ट पेन की हिस्ट्री होगी। जो एनीमिया वाला है वो ज्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एट वर्क, वो चीजों की पहले कंप्लेंट करेगा, उसके बाद वो कुछ पैल्पिटेशंस और उसकी बात करेगा। सो ये चीज आपने साथ साथ डिफरेंशिएट करना होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशंस को हिस्ट्री में, कि इफ इट इज बिकॉज ऑफ द कार्डियक डिजीज और इट इज बिकॉज ऑफ अनीमिया।
उसके बाद व्हाट मेडिकल ट्रीटमेंट शी हैज टेकन अप टिल नाउ, या उसको अभी तक अल्ट्रासाउंड पे क्या बताया गया, या अभी तक क्या ड्रग्स वो ले चुकी है, क्या पता कि वो प्राइमेलेट लेके आपके पास आई है, क्या पता कि वो पहले से ही कोई माइरीना रखवा के, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन यस इरम ने इस चीज पे जोर डाला था और बात की थी कि अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स और एनीथिंग एल्स, और वो सारा कुछ उसने, और अब तक की क्या ट्रीटमेंट उसकी हो चुकी है, या क्या कोई डीएनसी हुई है, नहीं वो सारा कुछ। सो वो हमने जरूर उसको रूल आउट कर देना। देन यस फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस तरीके से आप लोगे, ठीक है। उसके बाद आप देर आर फ्यू अदर रिस्क फैक्टर्स विच आर रिलेटेड टू एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसके अंदर आ जाता है डायबिटीज, ओबेसिटी और वो सारा कुछ। तो डायबिटीज का आप पूछ सकते हो, बट देन जब आप एग्जामिनेशन कर रहे होगे उसके अंदर यू स्टार्ट फ्रॉम द बीएमआई एंड देन वाइटल्स, वो उसी तरह जनरल फिजिकल में इन पर्टिकुलर टू दिस पेशेंट अनीमिया का सारी बातें इंपॉर्टेंट है, जिसमें पैलर कोइलोनिकिया इंपॉर्टेंट है। And then you talk about the thyroid examination, you talk about the cardiovascular system examination in particular. Yes, you check for edema. And then you do the abdominal examination and the pelvic examination sequence थोड़ा ठीक रहे तो वो भी बेहतर हो जाता है, ठीक है। अभी तक किसी ने कुछ ऐड करना है तो बता दो। कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है? ऑल राइट, सो दिस इज वेरी, ये टॉपिक बहुत कॉमन है और इम्पोर्टेंट इसी वजह से ज्यादा है। सो लेट्स गो टू द इन्वेस्टिगेशन। इरम जी इन्वेस्टिगेशन आप पूछो, क्या चाहिए होंगे इरम? मैडम बेसलाइन CBC with peripheral blood film and blood group and viral marker, complete urine examination, and madam on specific investigations, any endometrial sampling if done or not, and on TVS size of uterus and endometrial thickness, any uterine adnexal pathology on scan. वेरी गुड, ठीक है। और किसी ने कुछ मांगना है? Patient had shortness of breath, palpitations. मैडम मैम अगर ECG TSH करवाएंगे मैडम। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। और We will take the endometrial thickness. Assalamu alaikum, doctor. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर? ठीक है जी। We will take from the pregnancy test. First, we have to do the pregnancy test because she is still not menopause. So we'll start from the pregnancy test, and after pregnancy test, when we are doing the CBC, we have to check for anemia. If she gives the symptoms of the thyroid, then we will do the thyroid investigation, T3, T4, TSH. And after, then when we are going to do for the TVS, we have to check for the endometrial thickness, and along with that one, any structural abnormalities. And then we will ask her previously she has any pap smear or not. If she gives the history, we will take the pap smear and then doing the speculum exam at that time. These are the investigations we have to stand it. Already first we have to do it along with the CPS. That's the main we have to do it. गुड, बिल्कुल। थोड़ी आवाज आपकी कट रही है, ठीक है। और पैल्पिटेशंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए क्या करेंगे? Because we have to do for that one for the ECG, because we have to do on that time for the ECG for her. ठीक है, ठीक है, फाइन, गुड। सो यस मोर लेस इरम ने भी और बाकी लोगों ने मिलके भी और डॉक्टर शीदा ने भी इन्वेस्टिगेशंस पूरी कर दी हैं। सिम्टम देखें, TSH का सिम्टम तो आ गया इधर, क्योंकि पैल्पिटेशन तो पहले ही है। सो शी इज हैविंग HMB एंड पैल्पिटेशन, सो इट्स बेटर टू गेट द थायराइड फंक्शन टेस्ट डन। एक अच्छा पॉइंट बताया डॉक्टर शीदा ने कि इट्स बेटर टू गेट द प्रेगनेंसी टेस्ट डन एज वेल, बिकॉज शी इज 47 एंड शी इज इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएटिंग पेशेंट है। एंड देन पैल्पिटेशंस के लिए और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ECG और फिर कार्डियक इवैल्यूएशन, क्योंकि इन पर्टिकुलर पेशेंट ने इस चीज का कंप्लेंट की है, ठीक है, गुड। और जी इरम और कुछ ऐड करना है? मैडम UPT हम कब तक मांगेंगे, कोई एज लिमिट? मांग लो। देखो UPT एग्जाम के अंदर इट्स नॉट, इवन आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी UPT के ऊपर हमारा डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मांगो ही बेटा HCG।
कब तक मांगते हैं? देखो 48 तक मांग, 49 तक तो मांग ही लो। अगर व्हाट इफ के पेशेंट जो है वो आ गई है, और वैसे तो यस 49 तक, 50-51 इज द मेनोपॉजल एज, बट 45 के बाद इट्स वेरी वेरी रेयर, बट इट डज हैपन। वी ऑल कभी ना कभी जिंदगी में एक दफा जरूर ऐसे हो जाता है कि HMB के साथ पेशेंट आती है एंड शी इज अबव 45 एंड यू डू गेट द बीटा HCG डन एंड शी कम्स आउट टू बी प्रेग्नेंट, और फिर आपकी मैनेजमेंट बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। सो कुछ भी करने से पहले इट्स बेटर कि आप बीटा HCG मांग लो। सो यस, थायराइड भी मांगेंगे इसके अंदर, ECG भी मांगेंगे, और इवेलुएशन कार्डियोलॉजी की कराएंगे। ठीक है, मैं आपको देती हूँ इन्वेस्टिगेशन इरम। ठीक है, सो इरम, हर HP इज 8, राइट, 8 grams per deciliter. Rest of CBC is normal. बाकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। Beta HCG is of course negative. Thyroid function test is normal. Her ECG has got abnormal findings. And the cardiologist got the chest X-ray done as well, and the echo done, and cardiomegaly is there, and few changes are there in the echo. And then what else? और क्या चाहिए? Her endometrial sampling is not available. Pap smear is not available. और Madam, she is hypertensive or not? she's not hypertensive. और कुछ चाहिए? मैंने कार्डियक इवैल्यूएशन भी बता दिया आपको, और मैंने बाकी चीजें आपको बता दी है। और मैडम स्कैन? हाँ, स्कैन पे हर एंडोमेट्रियल थिकनेस इज 7 millimeters, which is, and also a few blood clots are seen in the endometrial cavity, and rest of the scan is normal. मैडम पेरिफेरल ब्लड फिल्म और सीरम फेरिटिन? एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना हर चीज पे। मैडम पेरिफेरल ब्लड फिल्म और सीरम फेरिटिन डन और नॉट? फेरिटिन इज लो, काफी लो है। मैंने 8 HP आपको बताई है, फेरिटिन इज लो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर रूबल। हाँ जी जी मैडम, अगर आप एग्जामिनर चाहे वो HP 8 बताएं तो क्या हम एग्जामिनर से पूछे कि मैडम इससे एनी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ये उससे प्री या पोस्ट HP है? तो पेशेंट आपको बता चुका होगा ना कि उससे ब्लड लगा है या नहीं। ठीक है, अभी अच्छा, और उसके अलावा हाँ, इरम आपका ना साथ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देयर वाज हेवी ब्लीडिंग प्रेजेंट आल्सो। सिनेरियो मैंने आपको दे दिया सारा। ठीक है मैडम, हम इसकी कोगुलेशन भी नहीं करवानी चाहिए साथ में? करेंगे। मैंने कहा है कि CBC नॉर्मल है, वायरल मार्कर्स नेगेटिव है, CBC नॉर्मल है, प्लेटलेट्स आर नॉर्मल। मैम प्लेटलेट्स अगर नॉर्मल बता देते हैं तो फिर भी हमने नहीं कोगुलेशन ओके। नहीं, अगर आपके ठीक है। प्लेटलेट्स नॉर्मल है, हेपेटाइटिस C नेगेटिव है, यू डोंट नीड टू गो टू द फर्दर थिंग्स। वो फिर मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट या किसी और का या एनेस्थेटिस्ट का काम है। हमें प्लेटलेट्स ठीक चाहिए। अगर हेपेटाइटिस C भी नहीं है, और तो हम ना तो LFTs की तरफ जाएंगे, ना हम PTA PTT की तरफ जाएंगे। हमारा काम था CBC में प्लेटलेट्स ठीक है, पेशेंट ने कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं दी कि उसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या उसे कट लगता है तो ब्लीडिंग ज्यादा होती है, और साथ वो C नेगेटिव है, तो वी डोंट नीड टू गो अहेड विद द फर्दर रेगुलेशन। मैडम साइज ऑफ मैम, अगर किसी का CBC एबनॉर्मल आता है तो हम फर्दर उसका सीरम फेरेटिन या करा लो, रेड सेल एनालिसिस कराएंगे। यस गायनी में भी उसी तरह कराएंगे जैसे ऑप्स में कराते हैं। वी नीड टू नो शी इज थैलेसीमिक और नॉट, थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं, क्योंकि हमने कल को इसका अनीमिया ट्रीट करना है। ऐसा ना हो कि हम पोस्ट ऑप में या प्री ऑप में कहेंगे चलो जी 8 HB है या 9 HB पोस्ट 8 IB पोस्ट ऑप है, तो चलो इसको IB आयरन लगा दे। सो वी शुड नो इफ एनी पेशेंट हैज कम विद अनीमिया, then we need to get the ferritin done as well as the even HB electrophoresis भी आप करा सकते हो अगर RBC इंडिसेस से आपको ऐसा इंडिकेट होता है। ठीक है मैम। जी कहाँ गए डॉक्टर जी? मैडम साइज ऑफ यूट्रस
नॉर्मल का है ना, मैंने सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ 7 mm एंडोमेट्रियल। देखो HMB का केस तो ऐसा ही होता है ना, वरना तो कोई पैथोलॉजी नजर आएगी या कुछ होगा फिर तो ट्रीटमेंट। हम तो आज कर रहे हैं एक तरह से कहते हैं DUB डिस्कस, बट आई हैव मेड दिस पेशेंट कार्डियक एज वेल बिकॉज ऑफ एनीमिया। मैं हिंट दे रही हूँ, शी इज नॉट कार्डियक अदरवाइज। उसकी कार्डियोमेगैली आई है, और उसका मैंने इसलिए एक्सरे का भी जिक्र कर दिया ताकि हम और कंफर्म हो जाएं कि कार्डियोमेगैली और ये चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि उसे इतना ज्यादा एनीमिया है। और साथ मैंने हिंट ये भी आपको दे दी कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन शी इज पासिंग क्लॉट्स, मतलब शी इज रियली हैविंग HMB, उसे वाकई ब्लीडिंग हो रही है और उसका HB कम हो गया और उसका हार्ट इतना उसके हार्ट पे लोड आ गया कि कार्डियोमेगैली हो गई है। अब ट्रीट करो। इट्स अ डिफिकल्ट केस। मैंने सीधा सीधा नहीं केस दिया आपको, कोई बात नहीं, चलो। Madam, first of all, I will counsel the patient and her family regarding the heavy menstrual bleeding, and most probably it seems to be like endometrial, and I will explain them regarding the management options, including both conservative and definitive with its pros and cons, and I will discuss my management plan with my patient. First of all, I will involve MDT, anesthetist, cardiologist, and I will plan her endometrial sampling. जी रम, आप अनम्यूट करोगे रम अपने आप को? Sorry, madam. Hello. हाँ जी जी, we can hear you. जी रम। जी madam, first of all, I will counsel my patient and her family सुन रहे जी, you are doing very good। जी आगे। Regarding the most probable diagnosis of abnormal uterine bleeding due to endometrial pathology, I will explain them regarding the management options, including both conservative and definitive with its pros and cons, and I will discuss my management plan with my patient. I would involve MDT, including cardiologist, anesthetist, and medical specialist, and I will build up her HB as she has a hemoglobin of 8, and I will madam, I will give her injectable iron, and oh no, madam, my patient is symptomatic. With the collaboration of cardiologist, as my patient has a hemoglobin of 8, madam, she is symptomatic, then I will transfuse her 1 pack cell, and I will plan her endometrial sampling. I will not give her anesthesia. My preference will be endometrial sampling by Papel, and I will meanwhile give her non-hormonal treatment, Trazamine and Constant for TDS for bleeding, and I will follow my patient on with the histopathology report, and my further management will depend upon histopathology report. अच्छा, आपको पता सारी चीजें, यू आर वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन आपने सिनेरियो पे अप्लाई नहीं किया। मैंने आपसे कहा कि वो उसको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हैवी ब्लीडिंग है, तो आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कैसे ले रहे हो? उधर आप ब्लड लगाई जा रहे हो, पहले आप ब्लीडिंग को तो देखो ना, ऊपर ब्लड लगी जा रहे, नीचे से ब्लीड किए जा रहे हैं, व्हाट इज द पॉइंट? You started with the line that I will explain to her the medical and the definitive treatment. Do you think she is fit for definitive treatment? How is she going to take that? If वो कहती है चलो मैंने मेडिकल देख लिया, प्रोस कॉन सुन लिया, मैंने तो डेफिनेटिव करानी है, but can you do surgery on this patient with this type of echo and ECG etc? इस तरह नहीं, मैंने इसलिए ये सारा आपको सिनेरियो दिया because we know, most of us know actually। अब प्रैक्टिस अगर आप लोग और ज्यादा कर लो, जैसे अभी IIT विजय रथ की हिस्ट्री एग्जामिनेशन से भी वैसा पता चल गया था कि शी नोज के उसने काउंसलिंग कैसे कर रही है, उससे वो सारा कुछ क्या कर रहा है, बट उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करो।
डायरेक्ट ब्लड आप लगा रहे हो, नीचे ब्लीड, मतलब इस तरह आप पेशेंट पे अप्लाई नहीं करोगे। तो इवन इफ यू नो द मैनेजमेंट ऑफ HMB, इवन इफ यू नो द काउंसलिंग, यू नो द इनिशियल स्टेप्स, यू नो द मेडिकल ट्रीटमेंट, यू नो एग्जैक्टली कि हाउ टू टॉक अबाउट, यू नो द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, हाउ टू अप्लाई इट ऑन द, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंस ऑफ पे आप उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड से बात करो, आप कहो कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन पेशेंट इज ब्लीडिंग हेवीली, शी इज ऑलरेडी एनीमिक, शी इज सो मच एनीमिक है और उसका हार्ट अफेक्ट हो गया है, सो डेफिनेटली आई विल एडमिट हर। ये एक बात आपने अच्छी की कि विद कार्डियोलॉजिस्ट में हाँ ब्लड तो लगाऊंगी, कार्डियोलॉजिस्ट को क्या पता कि नीचे इतना ब्लड लॉस भी हो जा रहा है, वो तो हमें पता है। सो पहले तो आप उसके लिए कुछ करोगे ना, इनिशियली उसे एडमिट करके उसे ट्रांसमीन IV के हाई डोजेस स्टार्ट करोगे, सो दैट हर, एंड इवन यू कैन स्टार्ट हर विद हार्मोनल मेडिसिन एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है, ताकि उसकी ब्लीडिंग थोड़ी सी सेटल डाउन हो, साथ उसे ब्लड लगे। एंड देन यू विल एक्सप्लेन टू हर कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है, डेफिनेटिव भी है, बट डेफिनेटिव के लिए तो शी अभी तो पता नहीं कब तक उसका हार्ट उसे अलाउ करेगा कि उसे एनेस्थीसिया मिले और क्या हो, राइट। तो उसको किस तरह लेके चलना है ये सारा अब दोबारा से आप हमें बताओगे, बिकॉज इस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके, ठीक है। Madam, as my patient is anemic and she is bleeding, I will admit my patient and I काउंसलिंग करो, will. और साथ ही काउंसलिंग, एडमिट से पहले काउंसलिंग करते हैं ना, फिर पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को पता चलता है एडमिट करने की क्या वजह है। I will counsel the patient and her family regarding the most probable cause of a bleeding, and I will admit my patient and I will explain the management plan, and I will build up her hemoglobin, and I will stop her bleeding with the non-hormonal and hormonal treatment. I will give her injectable Transamine and TDS, and I will give her progesterone to stop the bleeding, and meanwhile with the help of cardiologist, I will build up her HP, and I will tonsil her pack cell volume as she is asymptomatic, and after 1 pack cell volume, I will give her injectable iron, and when she is symptom free and her bleeding is settled, then I will discuss with her further management plan, whether she wants conservative or definitive treatment with its pros and cons. I will plan her endometrial sampling, and I will follow her report of endometrial sampling, and then according to endometrial sampling report, and after stabilization of my patient, I will proceed to her further treatment plan. वेरी गुड, नाउ इट वाज सो मच बेटर। आपका अच्छी बात यह है कि आपकी तैयारी उस तरह से मुझे लगता है काफी ठीक है, बस आप बोलने की बहुत प्रैक्टिस करो और अपनी नॉलेज को अप्लाई करो टू द पेशेंट, देन इट विल बी ग्रेट। मैं थोड़ा सा क्विकली इसका बताती हूँ एंड देन विल डिस्कस द मेडिकल मैनेजमेंट। इस वाले पेशेंट में देखो ना, जस्ट इमेजिन अ पेशेंट लाइंग इन अ काउच एग्जाम के अंदर, एंड शी इज सो मच एनीमिक कि उसका हार्ट अफेक्ट हो गया, इतना वो ब्लीड किया, शी इज 47, शी इज नॉट फिट फॉर एनेस्थीसिया ऑब्वियसली बिकॉज ECG एको इज नॉट अलाउइंग कि वो एक मेजर सर्जरी में से गुजरे, पहले शी नीड स्टेबलाइजेशन, राइट। सो आपने बात इसी तरीके से शुरू करनी है कि आई विल काउंसिल पेशेंट एंड her attendants that she has bled so much that according to the cardiologist seems like because of bleeding her heart is now getting affected, so she needs some treatment. For that, I would like to admit her in the hospital, considering her history, examination, and all the present investigations which are here. It seems to be the bleeding of endometrial origin, right? So considering that, I will admit her, would like to stop her bleeding because even now she is bleeding heavily. So for that, I will give her the emergency management in terms of Transamine, and if needed, I can add the progesterone only pills. You should know exactly in this patient why progesterone only pills, because it's now at this moment
they are the safest actually, because she is cardiac. अभी तक अगर चलो ये प्रूव नहीं भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल कार्डियोलॉजिस्ट इज येट इवेलुएटिंग हर के कार्डियोलॉजी की कार्डियक क्या कॉज निकली है, कोई और कोई खुदा ना खासा दे इवन नीड टू चेक अबाउट द एम्बोलिज्म और फिब्रिलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, और आप एकदम से ईस्ट्रोजन नहीं भी ऐड करना चाह रहे हो तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स आर द सेफेस्ट। इवन अगर कोई वजह कार्डियक भी निकला है तो भी आप उसको यू कैन इमीडिएटली स्टार्ट विद द प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स एंड ट्रांसमीन एटलीस्ट, ताकि उसकी इस वक्त की हैवी ब्लीडिंग को तो आप पकड़ सको ना। सो एज सून एज द ब्लीडिंग इज लेस और स्टॉप्ड, आई विल टेक बेड साइड पैप स्मेयर एज वेल एज द पिपेल सैम्पलिंग। ठीक है, यू डोंट वेट फॉर मंथ्स और यू डोंट गिव हर स्टार्टर विद द मेडिकल मैनेजमेंट एंड आफ्टर दैट यू डू द एंडोमेट्रियल सैम्पलिंग। हमने इमीडिएट मैनेजमेंट उसकी की टू लोअर डाउन द ब्लीडिंग और स्टॉप ब्लीडिंग सो दैट आई कैन टेक द पैप स्मेयर एज वेल एज द बेड साइड पैप स्मेयर एंड पिपेल सैम्पलिंग। ठीक है, और साथ साथ आई विल कंटिन्यू हर विद ट्रांसमीन एंड विद द हेल्प ऑफ और विद इन कोलैबोरेशन विद द कार्डियोलॉजिस्ट विल गिव हर पैक सेल ट्रांसफ्यूजन and will monitor her, ताकि 8 से एटलीस्ट उसकी 9 HbOs, if and will reevaluate her if its symptoms are better, उसकी bleeding रुक गई है, I will continue progesterone and then I will continue her with the progesterones only pills, और फिर then I will see if I can give her IV iron, or meanwhile cardiologist will then treat her. You can, for example, will ask you what progesterone only pills you are giving, for how many months or for how much time you will give her, and after how many months you would like to reevaluate her. तो उसमें फिर अब बताओ इरम, फिर आगे क्या करेंगे? Madam, I will give her progesterone for 3 months and then reevaluate. Which progesterone? Madam, norethistron. ठीक है, पूरा जल्दी जल्दी बोलो ना। 5 मिलीग्राम, यू डोंट हैव टाइम। इस पेशेंट के अंदर आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करके सर्जिकल ऑप्शंस भी डिस्कस करोगे तो इसकी मैनेजमेंट पूरी होगी। इफ यू जस्ट से norethistron and you just stop talking, बेल बजेगी and then you will be failed. So just keep on talking. अब HIV मेडिकल मैनेजमेंट में तो आपका नॉलेजेबल होना चाहिए ना विद द हार्मोन्स, राइट? सो जवाब देना शुरू करो कि किस तरीके से दोगे। इनिशियली तो देखो, somebody has asked, इकरा ने पूछा है चैट के ऊपर के प्रोजेस्टेरॉन के बाद कैसे एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करेंगे। मैंने ये कहा कि यू विल गिव ट्रांसमीन। हमारा मकसद ये है कि थोड़ी सी ब्लीडिंग कम हो तो आप एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करो। प्लीज बच्चों, प्लीज म्यूट कर दें अपने आप को। सो थोड़ी सी ब्लीडिंग कम हो ताकि फिर आप उसका एंडोमेट्रियल सैंपलिंग कर सको, राइट? सो यू गिव ट्रांसमीन। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही, यू कैन गिव इनिशियली फ्यू डोजेस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ओनली। उससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। एज सून एज द ब्लीडिंग इज लेस, यू विल टेक द एंडोमेट्रियल सैंपलिंग एंड कंटिन्यू द प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन अब आप उसका यू विल गिव नॉरहेस्टेरॉन 5 मिलीग्राम TDS फॉर 3 months. You can give it as withdrawal bleeding, or you can and then if you feel like, you can even give her with the COCPs also. और फिर you need to know exactly कि success rate किसका कितना है. Meanwhile, you would like to reevaluate her more frequently for anemia as well as the cardiac evaluation. As soon as she is fit for the surgery, you will discuss with her the definitive management also, as well as the medical management. If she's okay with the medical management, you will give her options. You can give the combined oral contraceptive pills. You can give her progesterone only pills. You have the option of Mirena. आपको इन सब की success rates पता होनी चाहिए. उसके बाद you should, and if she opts for the definitive management, you should know the definitive management also. ठीक है, Iram, this is how you reply to this answer. HMB is one topic जिसमें आपका ड्रग्स का नॉलेज ऐसे उबलना चाहिए कि what okay, this progesterone only, this dose 15 to 20 milligram per day norethistron with withdrawal bleed 21 plus 7-day cycle for 3 months. और उसको किस तरह फॉलो करोगे? There is this percentage of success associated with it.
If she's not willing, I'll give COCPs. COCP से इतना levonorgestrel, it's an intrauterine system which has got this much success, और उससे फायदा ये होगा कि menopause के बाद, but examiner says no, she wants a definitive treatment, तो फिर आपको मतलब you have only 10 minutes. उसमें से अगर 3, 4 या 5 minutes आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो 6 minutes में यू हैव टू कवर. इवन इसके अंदर अगर बात यूलिप्रेस्टल तक भी चली जाए, यूट्राइन ये एब्लेशन तक चली जाए, एंडोमेट्रियल एब्लेशन तक, तो फिर तो और भी अच्छी बात है. बिकॉज दिस इज वन टॉपिक जिसमें लोग बात वहीं तक लेके जाएंगे. 80 to 90% of candidates are very well prepared in all these topics like HMB, fibroid, anemia, hypertension, diabetes, etc. Because ये तो आना ही है. और जब आपके सामने वाला कैंडिडेट बात करके गया है एंड तक पे भी, यूलिप्रेस्टल एसीटेट तक ले गया बात, या एंडोमेट्रियल एब्लेशन तक, और आप आके सिर्फ नॉरेथिस्टेरॉन बोल के चुप हो गए हो, तो फिर तो इतना स्टैंडर्ड में फर्क नजर आ गया ना उस एग्जामिनर को, जो 2 कैंडिडेट को देख रहे हैं इन द सेम एग्जाम. सो यू हैव, आपका कंपटीशन भी है विद द कैंडिडेट जो आपसे पहले जो होके गुजरे सारे, और दिस इज वन टॉपिक जिसपे बिल्कुल माफी नहीं, बिकॉज ये तो वो है जो हार्मोन्स है, जो हमारी फील्ड है एक्चुअली. इट शुड बी आवर स्ट्रेंथ. तो नाम क्या ले लिया मेडिकल मैनेजमेंट का, आपका तो ऐसे नॉलेजेबल ना चाहिए उसमें से. ठीक है. सो यू हैव देन ओनली 6 minutes टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट HMB. And HMB is like a huge topic and you should know exactly how to reply. So, but I know आपकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन, आपकी बात से, आपकी डिस्कशन से, you know, ये आपकी तैयारी मुकम्मल है. It's just the practice which you need to do more. जिसका टाइम भी है आपके पास, और इंशाल्लाह, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है, 2 तरीके होते हैं खुद सेल्फ प्रैक्टिस का. मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड करो, एक केस सिनेरियो बनाओ, चाहे वार्ड में देखा है या खुद बना लो, उसकी हिस्ट्री बोला शुरू करो, अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखो, एंड फिर वो जब बंद हो वो रिकॉर्डिंग सुनो. उससे आप बहुत इम्प्रूव करोगे, बहुत ज्यादा, अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुन के. क्योंकि जब आप बोल रहे होते हो बहुत सारे पॉइंट्स माइंड में नहीं आ रहे होते, सुनते हुए आपको बहुत कुछ पता चल रहा होता है. सो वो चीज. दूसरा, मेक अ ग्रुप, 4 लोगों का, 2 लोगों, एटलीस्ट 2, बट अगर जितना बड़ा ग्रुप हो उसका फायदा है, उसके बीच में बैठो, बोल, जस्ट टॉक अ लॉट, बहुत ज्यादा बोलो उसके अंदर बैठ के. तो उससे एक तो बात भी याद रहती है, दूसरा आपको अपना पॉइंट एम्फसाइज करने का तरीका आ जाता है. सो इस चीज को बहुत प्रैक्टिस करो. दिस इज व्हाट यू नीड, यू नो एवरीथिंग अदरवाइज. ठीक है. सो इस तरीके से आपने मेडिकल मैनेजमेंट की बात करनी है. फॉर एग्जांपल, इफ एग्जामिनर सेज दैट आपने अगर डेफिनेटिव मैनेजमेंट, इरम, अब डेफिनेटिव मैनेजमेंट बताओ क्या होगी. Madam, as my patient is 47 years old and she is anemic and bleeding heavily, symptomatic. I will discuss management option with my patient. Then according to wishes of my patient, I will give her medical or surgical treatment. Madam, she can be a candidate of Marina. After build up her HB, or if she wants, otherwise we can give her an option of hysterectomy. She wants definitive treatment. Madam, hysterectomy. Hysterectomy is not an answer. Surgical. आप कहोगे then there are surgical options. What surgical options? Okay, hysterectomy. Then what hysterectomy? Through what route? Madam, if previous no history of surgery, then we can give her option of vaginal or abdominal hysterectomy or laparoscopic hysterectomy. अस्सलाम वालेकुम मैडम. पेशेंट कहती है क्या वजह, आप डिसाइड करके बताएं. It's your decision. Okay. Doctor, madam, we will not going to ask if she want to preserve her uterus or not to want to preserve her uterus. Then we can give her the treatment, definite treatment. आपकी आवाज कट रही है राशिदा, आवाज तैयारी पे बता. मुझे जो क्वेश्चन आपका समझ आया है कि you are saying कि I would like to discuss with the patient if she wants to conserve uterus or not. पेशेंट ने कह दिया कि उसे hysterectomy चाहिए. हम ये बात कर रहे हैं कि patient is saying कि if she wants definitive treatment and which means कि उसे अब surgical treatment करानी है.
राइट, एंड फॉर एग्जाम्पल शी इज विलिंग फॉर हिस्टेरेक्टमी, उसके बाद अब वो इरम को कहती है कि इट्स योर चॉइस कि यू आर गोइंग टू डू हिस्टेरेक्टमी, व्हाट रूट यू विल ऑप्ट फॉर मी? Madam, ideally laparoscopically hysterectomy should be done if facilities is available and expertise are available in our setup. If not, then madam, we can tell her about the setup where laparoscopy hysterectomy is done, or otherwise madam, VH की facilities है, VH की आपके हॉस्पिटल में? जी मैडम। इस पेशेंट में VH कैसी होगी? मैडम डिपेंड नहीं करेगा उसका BMI। सॉरी रशीदा, आपके सिग्नल्स का मसला, आपकी हमें हमारे तक आवाज ही नहीं आ रही है। आप चैट पे लिखो, वी कैन नॉट हियर यू। आप बातें अच्छी कर रहे हो, वो मैं कुछ थोड़ा सा पिक करके समझ रही हूँ कि क्या कह रहे हो। आप चैट पे लिखो, सो मैं फिर कम्युनिकेट कर लूंगी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर रूपा जी मैम, इस पेशेंट में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन का कोई रोल नहीं है? SCS ये कंप्लीटेड आगे बात करते हैं। देखो, एक जब आपका केस सिनेरियो होता है ना, उसमें मैनेजमेंट डिस्कस हो रही होती है। एक तो बेसिक मैनेजमेंट है, थ्योरेटिकल मैनेजमेंट ऑप्शंस, उसके बाद एक अगला पार्ट होता है रीसेंट एडवांसेस का। यूलिप्रिस्टल या यूट्राइन आर्टरी का कोई ना कोई रोल, ये चीजें आप रिसेंट एडवांसेस में इसलिए क्योंकि इसकी अब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन नहीं हमारे पास, राइट। यूलिप्रिस्टल की तो फिर भी है, बट वो वी डोंट डू इट हियर बिकॉज वी डोंट हैव यूलिप्रिस्टल हियर, बट इसलिए हम उसको भी रिसेंट एडवांसेस में डाल देते हैं, ठीक है। सो ये जो यूट्राइन आर्टरी, यूलिप्रिस्टल, ये चीजें हैं, ये आप ना भी एग्जाम में बोलो तो अच्छा है। ये बोलो कि एग्जामिनर से आपकी सारी डिस्कशन हो गई है एंड एग्जामिनर वांट्स टू आस्क व्हाट आर द recent advances related to the management of this patient, या what are the further advanced methods that you would like to discuss। ये उन लोगों के लिए जिनके बहुत ही एक्स्ट्रा मार्क्स आने होते हैं, राइट। तो अगर आप हिस्टेरेक्टमी की डिस्कशन में यूट्राइन आर्टरी की बात करोगे तो फिर आपकी पासिंग मार्क्स भी रह जाएंगे, क्योंकि पास तो आपने होना है हिस्टेरेक्टमी और उन बातों में। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम, ठीक है। सो इरम कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ जी, आयशा ने कोई क्वेश्चन पूछना, जल्दी से पूछ लो आयशा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछना, ये चैट पे मेरे कुछ फेलोज जो हैं वो लिख रहे हैं कि VH इज नॉट पॉसिबल एज देयर इज नो प्रोलैप्स। उसका जवाब मैं देती हूँ, फिर आपके बाद का सारे जवाब आ जाएंगे। उसका क्लैरिटी मैंने भी देनी है, 1 मिनट दे दो मुझे। अच्छा, सो इरम देखो, चाहे फैसिलिटी लेप्रोस्कोपी की है या नहीं, एक पेशेंट है वो इज पैरा 3 who has got previous all SVDs, she has got cardiac problems, बड़ी मुश्किल से एनेस्थीसिया के लिए वो फिट हुई है, but she wants definitive treatment. Yeah, she's a candidate of failed medical treatment, right? That's why patient examiner is discussing with you the definitive treatment, because this patient can come to you even with the failed medical treatment and you have to plan hysterectomy क्योंकि आपने उसका इलाज तो करना है. So I mean, as soon as she gets fit for anesthesia, cardiologist ने उसे label कर दिया she is high risk for anesthesia, but you have to go do her hysterectomy. And उस केस के अंदर इस तरह का पेशेंट, देखो we all know कि there are 3 routes through which we can do hysterectomy: VH, laparoscopic hysterectomy और open hysterectomy. हर तरीके से morbidity के हिसाब से VH is the best route. नंबर 2 में बेस्ट आता है लेप्रोस्कोपिक, नंबर 3 में आता है एब्डोमिनल. अब आप कहोगे कि पेशेंट की यूट्रस वेल सपोर्टेड है, मैं VH कैसे करूंगी? शी इज पैरा 3 नॉर्मल डिलीवरीज हुई है, पेशेंट के वेल सपोर्टेड यूट्रस हो, लेकिन उसके अंदर VH will cause very less bleeding, it will cause almost nil incidence of gut injury or anything like that. और इसमें एब्डोमेन नहीं खुल रहा, मिनिमली इन्वेसिव किस्म का ही रूट है, बिकॉज वजाइनली आप सारा कर रहे हो. एक्सपर्टीज आपके पास है, हर जगह ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं जो कि बेशक वेल सपोर्टेड है, बट आज शी नेवर हैड एनी सिजेरियन और प्रीवियस गायनेकोलॉजिकल सर्जरी, तो उसका कहीं ऊपर फाइब्रोसिस की वजह से तो यूट्रस नहीं हुआ होगा. सो इस तरह के यूट्रस जो पैरा 3 पेशेंट है जिसकी नॉर्मल डिलीवरीज है, वो लैक्स यूट्रस होता है, उसके अंदर VH इज इवन बेटर देन लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी और द एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, ठीक है ना.
तो आप इस तरह के पेशेंट में फिर नंबर 1 ऑप्शन रखोगे VH। जो एक्सपर्ट हैंड्स होते हैं वो तो आधे घंटे में इस तरह के पेशेंट की VH कर देंगे, राइट। सो शी हैज गॉट बड़ी मुश्किलों से उसकी एनेस्थीसिया फिटनेस हुई है, शी वांट्स डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, या फिर मुश्किलों से एनेस्थीसिया फिटनेस हुई है एंड शी इज अ फेल्ड कैंडिडेट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यू आर प्लानिंग सर्जरी। व्हाट सर्जरी? आप लोगों को वो टेबल पूरा याद होना चाहिए किस बुक में, मेरा ख्याल है शॉज में या डिहोल्ट्स में, ये देख लेना। तीनों प्रोसीजर्स का कंपैरिजन है, बहुत प्यारा। VH, TLH एंड TAH, इन तीनों का कंपैरिजन दिया हुआ है, जिसके अंदर कंसिडरिंग ब्लीडिंग, हेमरेज, गट इंजरी, ब्लैडर इंजरी, यूरेटर इंजरी, विसरल इंजरी, हॉस्पिटल स्टे, डेथ, खुदा ना यू नो, इन सबका एक टेबल दिया हुआ है कि VH में कितना इंसिडेंस है, लेप्रोस्कोपिक में कितना इंसिडेंस है और एब्डोमिनल में कितना इंसिडेंस है। इन तीनों प्रोसीजर्स में ये सारी मॉर्बिडिटीज का बकायदा इंसिडेंस दिया हुआ है कि VH में, और उसमें VH नंबर 1 कॉलम में इसीलिए क्योंकि वो इन सब में से बेहतर है, ठीक है। सो यू शुड नो दिस। आपका जवाब इसी तरह से ही होना चाहिए कि आप VH कब कर रहे हो, TLH और TH क्या कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने बड़े प्यारे तरीके से उसकी वो की, और फिर पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी हुई। जब ये सारा कुछ हो जाएगा, जो कैंडिडेट यहाँ तक आया और टाइम कुछ सेकंड्स भी बाकी हुए, उससे फिर एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट आर द अदर वेज। यस, एंडोमेट्रियल एब्लेशन का भी है, इट्स अवेलेबल इन पाकिस्तान, बट यस यूलोप्रिस्टल एसीटेट पे बात हो सकती है। और अब वो चीजें जिस पे अभी काम चल रहा है, जैसे यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन और ये बातें, सो ये वो चीजें जिनके ऊपर अभी हार्ड एंड फास्ट हमें गाइडलाइंस नहीं मिलेंगी। सो ये फिर इस तरीके से वाइवा चलेगा। आयशा, आप बताओ, आप क्या कह रहे थे? ठीक है, आई होप आयशा गॉट द आंसर व्हाट शी वांटेड टू से। शायद यही कमेंट आयशा ने भी करना था। सो आप लोगों को दो चीजों पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए जब HMB का केस है। एक तो आपने जब एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करनी है तो क्या करनी है, क्या वो आपने पेपेल करना है, क्या वो आपने ब्लाइंड ENC करनी है, या आपने हिस्ट्रोस्कोपिक सैंपलिंग करनी है। दूसरी क्लैरिटी की जरूरत है कि अगर आपने हिस्टेरेक्टमी करनी है तो वो किस रूट से करनी है, क्या वो VH है या वो लेप्रोस्कोपिक है या वो एब्डोमिनल है। सो ये जब आपने एंडोमेट्रियल सैंपलिंग इस पेशेंट में बेड साइड, बिकॉज एनेस्थीसिया का सवाल ही पैदा नहीं होता था, सो यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि किसकी कितनी सेंसिटिविटी है, पेपेल की कितनी है और ब्लाइंड ENC की कितनी है और हिस्ट्रोस्कोपिक की कितनी है। यस, हिस्ट्रोस्कोपिक हैज गॉट बेस्ट sensitivity and best sample is taken in hysteroscopic guided, but again it needs anesthesia. So yes, आप post menopausal में जिसमें endometrial thickness ज़्यादा है उसमें ताकि कुछ भी मिस ना हो, ताकि आप उसमें, and hysteroscopic is the best. If you have facility, you have the expertise, you can do it and patient is fit for anesthesia. Otherwise PEPAL can be done in OPD और bedside हो सकता है, और ब्लाइंड ENC अगर एनेस्थीसिया ही दे रहे हो फिर तो हिस्ट्रोस्कोपिक की बेहतर है। तो आपको इन तीनों में सेंसिटिविटी का पता होना चाहिए किसकी बेहतर है। इफ यू टॉक अबाउट इंसिडेंसेस, सेंसिटिविटीज, आपका वाइवा बहुत बेहतर हो जाता है, राइट। सो देन सिमिलरली आपने जब प्रोसीजर की बात करनी है तो किस रूट से करना है और किस में कितना फायदा है। इवन इफ यू टॉक अबाउट द इंसिडेंसेस के ब्लैडर इंजरी, गट इंजरी किस में कितनी है, बिकॉज ये वो चीजें हैं जो कि हमारी हैं, यू नो, हमने ही करनी है। VH किसी और फील्ड के बंदे ने आके तो नहीं करती ना, या एब्डोमिनल या लेप्रो, अगर वो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो गलत कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मॉर्बिडिटी एंड अबाउट द पेल्विस एंड ऑल, वो तो फिर अनएथिकल प्रैक्टिस है। सो यू शुड नो अ लॉट अबाउट VH, कौन सा रूट बेस्ट है। इफ यू डोंट नो अबाउट द रूट्स के कौन सा बेस्ट है, फिर एग्जाम में बहुत मुश्किल हो जाती है। सो आपको वो सारी चीजें इसी तरह बतानी चाहिए। हाला ने हैंड रेज किया। जी हाला। अस्सलाम वालेकुम मैम। कल मैंने एक पेशेंट को एग्जामिन किया, शी वाज पैरा 8 और मैम उसका यूट्रस उस पे फाइब्रॉइड था और उसकी HMB की हिस्ट्री थी एंड शी वाज लाइक 51 इयर्स और 48 इयर्स सॉरी। तो मैम वो जो पेशेंट थी, मतलब वो पैरेटिव उसकी ज्यादा है, उसकी तो मुझे सर्विक्स भी नजर नहीं आ रही थी। जब मैंने उसकी PV की तो मुझे तो फील हो रही थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जब हम PS करें तो क्योंकि जब मैंने PS किया तो मतलब जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं तो वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, वो जब मैंने फील किया तो वो पोस्टीरियरली थी। तो एक क्वेश्चन तो मेरा ये कि इसमें हम फिर PS पर किस तरह करें, मतलब जो है वो डक्ट स्पेकुलम को नीचे की तरफ डिफिकल्ट केस। देखो डिफिकल्ट केसेस आर देयर बट कम ही होता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन यस जिसमें इंटीरियर वॉल फाइब्रॉइड है उसमें सर्विक्स कहीं और ही नीचे गई होती है।
या जिसके अंदर कोई पोस्टीरियर वॉल फाइब्रॉइड है, उसमें सर्विक्स कहीं ऊपर, इवन आई हैव सीन अ पेशेंट जिसका एक राइट ब्रॉड लिगामेंट में इतना बड़ा फाइब्रॉइड था कि सर्विक्स जो थी वो टोटली लेफ्ट साइड पे थी, इट वाज बकायदा लड़ाई करनी पड़ी सर्विक्स को ढूंढने के लिए। तो यस, और उसके अंदर शायद कॉपर टी इंसर्ट करनी और मायरीना शायद वो रखवाने आ गई थी एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उस तरह से इट इज वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स कि आप सर्विक्स ही ढूंढने बैठ जाओ। तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, बट एग्जामिनर इज ऑल्सो लुकिंग एट यू, डोंट वरी, बट ट्राई योर वेरी बेस्ट के मिल जाए, दुआ करो कि मिल ही जाए। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, व्हेन यू आर डूइंग बाय मैनुअल लेटर ऑन आप कमेंट कर सकते हो कि देखो आई कुड फील अ ह्यूज फाइब्रॉइड इन द इंटीरियर वॉल, या देयर वाज अ मास जिसकी वजह से मुझे बाय मैनुअल पे सर्विक्स बहुत पोस्टीरियर जाकर मिली। कई दफा वेरी रेयर इस तरह के केस में ऐसे भी आप कर सकते हो कि जब आपने बाय मैनुअल किया, आपने इंटीरियरली फाइब्रॉइड देख लिया और आपको सर्विक्स पीछे जाकर मिल गई, एंड यू थिंक अब मैं स्पेकुलम डालूंगी तो मुझे मिल जाएगा सर्विक्स। तो ये रेयर केसेस के अंदर देयर इज नो हार्म कि उसके बाद आप स्पेकुलम डाल के ले लो, एग्जामिनर को नजर आ रहा होता है, ठीक है, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आवर ओपीडी आल्सो। मैडम उसके बाद जब फिर मैंने फिर से स्पेकुलम डाला तो भी वो पोस्टीरियरली जब मैंने उसको दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। आप बाय मैनुअल में अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो कि मुझे इसलिए सर्विक्स नहीं मिली थी। जी मैम। मैम अब मेरा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट के, अब जो इस तरह की पेशेंट मुझे सर्विक्स ही नहीं मिल रहा, तो मैं, और उसकी पैरिटी भी इतनी हाई है, उसकी एज भी ज्यादा है, तो मैम उसका यूट्रस तो बिल्कुल, मतलब उसमें तो फिर मैं वीएच किसी भी तरीके से नहीं कर सकती। नहीं, फाइब्रॉइड वाले में तो वीएच वैसे ही बहुत मुश्किल है ना, अगर तो ज्यादती है। फाइब्रॉइड को निकाल देना फॉर एग्जांपल, लाइक आप ये कि फाइब्रॉइड नहीं, अगर फाइब्रॉइड इसका नहीं होगा तो फिर तो सर्विक्स मिल जाएगी ना। जी जी ठीक है, सही है मैम, ओके। और मैम एक और क्वेश्चन है मैम, मुझसे एग्जाम में ये पूछा था कि मैंने कहा था कि मैं वीएच और ओपेरेक्टमी करूंगी। मैम वो पेशेंट जो थी वो प्रोलैप्स के साथ आई थी और पोस्ट मेनोपॉजल थी ना, और तो उन्होंने मुझे कहा कि वीएच पे क्या ओवरीज हम हटा सकते हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, तो मैम उन्होंने मुझे कहा कि हम नहीं हटा सकते हैं, उसके लिए मतलब वो कोई और सिनेरियो का होगा, वीएच के साथ बीएसओ भी हो सकती है। जी सानिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने ये पूछना था आपसे कि गाइडलाइंस में ना मैंने पढ़ा था कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी ना ये आइडियल रूट है, डिपेंड हमारा करता है यूट्रस के साइज पे और उसका डिसेंट और मोबिलिटी कैसी है। हाँ, तो हमने प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल देखो वही बात, जैसे भी हाल है वीएच उस केस में जिसमें यूट्रस में फाइब्रॉइड नहीं है, प्रीवियस सर्जरी नहीं है, मल्टी पैरस है, राइट जी। जो टीएलएच है वो फिर जाहिर है अगर प्रीवियस सर्जरी आ गई है या फाइब्रॉइड है या कुछ भी और चीज है तो ऑब्वियसली टीएलएच इज बेटर, राइट जी। मैम वो इसमें एचएमबी के केस में लिखा हुआ था इसकी गाइडलाइंस में कि लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी सबसे बेस्ट रूट है। उसके बाद उसके अंदर देखो दैट इज आल्सो राइट, लेकिन ईबीएम या उसके अंदर इस तरह का पेशेंट जो अभी हमने डिस्कस किया जिसके अंदर एनेस्थीसिया फिटनेस का कम हमें चाहिए, मिनिमल एनेस्थीसिया देना है, और शी इज पैरा 3 और उसके अंदर बिकॉज इसके अंदर लैक्स यूट्रस लैक्स टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर जब आप वाई लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड 2 मिनट लगते हैं नीचे से क्लैंप्स लगाने में, पहले आप लेप्रोस्कोप डाल के ऊपर से पकड़ोगे फिर नीचे से करोगे, अगर आपने वीएच करनी है तो 2 मिनट में वो तो वीएच इज ऑब्वियसली बेटर इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। सो पेशेंट नॉट लाइक इन एवरी पेशेंट यू विल से वीएच इज द बेस्ट। एक बिल्कुल सीधा सीधा पेशेंट हो उसके अंदर वीएच इज आप लोग को टेबल देखना, ट्राई टू फाइंड आउट कि वो किस बुक में था, मेरा ख्याल है ईबीएम या इनमें से कोई बुक में है, और वील शेयर इट इन द ग्रुप आल्सो, जिसके अंदर वीएच की कम मॉर्बिडिटी है। ठीक है मैम वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कैसे कार्डिक कंप्रोमाइज है पेशेंट, इसमें आप कह रही हैं प्रेफरेबली हमारी जो है लीस्ट एनेस्थीसिया वीएच होना चाहिए और वैसे हमें प्रेफर लेप्रोस्कोपी करनी चाहिए? नहीं ठीक है, वैसे भी वीएच ही है। ठीक है मैम, अगर बिल्कुल सीधा सीधा पेशेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैडम जी मैडम ये प्लीज बता दीजिएगा ओवुलेटरी और एन ओवुलेटरी डीयूबी के इसमें मैडम ये डिफरेंस और इसकी ना ट्रीटमेंट मैडम ओसीपीज देते हैं प्रोजेस्टेरोन मैडम, ओवुलेटरी एंड ओवुलेटरी डीयूबी की ट्रीटमेंट में इस वजह से कोई फर्क नहीं होता कि वो ओवुलेटरी है या वो एन ओवुलेटरी है। मैडम दोनों दे सकते हैं, दोनों में दोनों दे सकते हैं जी। थैंक यू मैडम। वेलकम जी सबा। मैम ओवरीज डिस्कस कर लें कि ओवरीज हमने रिमूव करनी है, इस पेशेंट से डिस्कस कर लें कि जनाब ओवरीज हम आपको देखो जिसके अंदर ओवेरियन रिमूवल, ये तो है ही 47 की ओवेरियन रिमूवल की बात तो ज्यादा पोस्ट मेनोपॉजल में होती है, उसमें भी इवन दोनों में चलो आपने 3 चीजें देखनी होती है।
एक चीज तो ये कि उसकी फैमिली हिस्ट्री, इफ देयर इज एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ कार्सिनोमा लाइक ब्रेस्ट, ओवेरियन, एंडोमेट्रियल स्पेसिफिकली। नंबर 2, उसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑफ ओवरी, क्या अल्ट्रासाउंड में कोई पैथोलॉजी है या नहीं। नंबर 3, इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग। अगर ये तीनों चीजें नॉर्मल है तो फिर ओवरीज क्यों निकालनी है? फिर ओवरीज ना पोस्ट मेनोपॉजल में निकालनी है ना प्री मेनोपॉजल में। थैंक यू मैम। ठीक है, चलो, यू वेलकम। मुझे हॉस्पिटल से बड़ी कॉल्स आ रही हैं, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्ड जी। ठीक है, सो वी नीड